if a particle is performing uniform circular motion, then the angle traced by the radius vector, ये linear displacement होती है, मालूम ये angular displacement है. The angle traced by the radius vector, the angle traced by the radius vector is called as angular displacement. In a given time, it is called angular displacement. ये जो radius vector है वो क्या है ये भी मालूम है. Radius vector it is also called as position vector. Radius vector is also called as position vector, which tells you the position of the particle. Particle कहाँ है? At which position is the particle? So that is r bar. Any problem? Fine. So over here this is r bar. This is the vector. जो vector है उसका magnitude direction मालूम होना जरूरी है. Radius vector का magnitude कितना है? Equal to the radius of the circle. Direction कहाँ है? From the center of the circle to the position of the particle. कहाँ? So रेडियस वेक्टर जब यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा क्या कहते हैं. तो जब यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदलेगा, डायरेक्शन बदलेगा, ये दोनों बदलेंगे. द आंसर इज मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलेगा, रेडियस तो उतना ही. व्हाट विल चेंज कंटिन्यूअसली द डायरेक्शन. और ये ds बार भी वेक्टर है, इट इज अलोंग द tangent. ds bar is the linear displacement, it is along the tangent. And d theta is also a vector. It is called as angular displacement vector. And what is the magnitude? And what is the direction? It is the angle in radians is the magnitude, and the direction is given by right hand. Put your right hand over here. Take it to the curve is around the direction in which the particle is performing circular motion. The thumb will point the direction of delta. And we know the relation delta S bar is equal to delta theta bar cross r. Delta theta bar cross r. So the problem is anything which you are not able to understand, please stand. Fine. Once you आणि सगळं कळलं मॅग्नीट्यूड डायरेक्शन इनर्शियल आणि आता जसं हा एकदा कळला की बाहेर गोष्टी सोप्या होऊन जातात. Now whenever a particle performs uniform circular motion, what is the definition of uniform circular motion? The motion of a particle along the circumference of a circle with constant linear speed is uniform circular motion. The motion of a particle along the circumference of a circle with constant angular velocity is uniform circular motion. But the motion of the particle along the circumference of a circle with constant linear velocity is not uniform circular motion. Everybody repeat the three sentences. A particle moving in a circumference of a circle along with a uniform velocity is UCM. A particle moving in a circumference of a circle with a constant angular velocity is UCM. But the particle moving with a linear velocity is not UCM. याच्यापैकी काय चुकलं तो एकदम बरोबर सांगितलं, एकदम छोटीशी चूक आहे. You have used by being rectified use. Particle along the circumference of a circle with constant linear speed if you see it बराबर है उसके. The motion of a particle along the circumference of a circle with constant angular velocity is you see it. The motion of a particle along the circumference of a circle with constant linear velocity is not this. क्यों ऐसा है? इसकी क्या सेम रहती है? तुमको कैसे मालूम डायरेक्शन? प्रैक्टिकल बरोबर बरोबर
पार्टिकलच्या वेलोसिटी डायरेक्शन बदलत असते. वेलोसिटी के दो हिस्से हैं और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलता नहीं है, डायरेक्शन बदलती. कैसे मालूम? सिंपल पत्थर घुमाओ उसको, जहाँ कहीं छोड़ोगे उसको टैंजेंशियल जाएगा. तुम्हाला नाही वाटत आणि ती ग्रॅव्हिटी मुळे जाते. जर ग्रॅव्हिटी नसेल तर असंच टॅंजेंशियल जात नाही. जसं आपण सॅटेलाइटला जर थोडा धक्का मारून दिला इसके पिक्चर ऐसे तो it will continue to move around the dimension. So magnitude of velocity UCM में constant होती है. क्या बदलती है लगातार? Let us define angular velocity omega 1. Angular velocity is defined as the angle traced by the radius vector per unit time. It is the angle traced by the radius vector per unit time. I write it as limit as delta t tends to 0, delta theta by delta t. Read out. Or I write it as d by dt of, or I write omega is d by dt of. Take out nothing else. Now, v bar is limit as delta t tends to delta s upon delta that is ddt of, and v bar is kind of omega bar plus omega bar v bar is equal to omega bar plus in a double to partition this delta s की जगह पे क्या डालो delta theta into r plus r को बाहर निकालो. डायरेक्शन v की डायरेक्शन ds की वेलोसिटी ds की डायरेक्शन टेंजेंशियल v की टेंजेंशियल r वही है ओमेगा की डायरेक्शन along the direction of delta t. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक मैग ऑफ v बार कांस्टेंट है, दो ओमेगा बार कांस्टेंट है लेकिन v बार कांस्टेंट नहीं है. v बार का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन बदलता है, और क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन बदलता है, इट इज एन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. मन नक्की करते कैसे दिस एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस and the acceleration, what is the job of the acceleration is to change the direction of velocity. And accelerated frame of reference, the acceleration is called as centripetal acceleration. It is directed towards the center of the circle. It is directed towards the center of the circle. It is centripetal. And you have magnitude r omega square, or I have minus r omega square, minus sign से r bar की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन, r bar की जो डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन. Acceleration is equal to minus r omega square. Acceleration is directed towards the center. सही नहीं चलेगा. इसकी प्रूफ याद है हमने v बार r बार के लिए एक एक्सप्रेशन निकाला था. r बार इज इक्वल टू i into r cos of omega t into I cap plus j into sin of omega t that into j cap. डेरिवेटिव लिया था, v आया था. So you can correlate it with application of derivative. कि अगर डिस्प्लेसमेंट मालूम है तो उसका डेरिवेटिव निकालो, वेलोसिटी आता है. वेलोसिटी मालूम है, अभी जब पढ़ोगे तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के साथ इंटीग्रेट करना उसको नहीं किया जाता. और वेलोसिटी का डेरिवेटिव निकालोगे तो एक्सीलरेशन आएगा. डबल डेरिवेटिव आर को कॉमन ले लेता है, ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लो,
क्योंकि हर डेरिवेटिव में ओमेगा बाहर आता है, ऑपोजिट फंक्शन है, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, माइनस साइन शोइंग आर और एक्सेलरेशन सेंट्रीपेटल की डायरेक्शन अपोजिट। प्लीज याद रखो, हर चीज जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है उसको वैसा करने के लिए किसी न किसी फोर्स की जरूरत होती है, जो फोर्स उसके वेलोसिटी को लगातार बदले, और उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। जब एक थ्रेड, अभी जो हम बात कर रहे थे, उसको पकड़ के हाथ में रख के एक एंड पत्थर लगा के दूसरे एंड पे वो घुमाते हैं, तो जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, यानी उसका काम क्या है, हर बार हम सोचते हैं फोर्स है तो वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदलेगा, जो फोर्स है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदल सकता है, कि हाँ आपने भेजा राइट में बदल लाल कर दिया, फोर्स अप्लाई किया, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बदल दी, लेकिन ये फोर्स का काम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदलने का नहीं है। इस फोर्स का काम है वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलने का, इसलिए स्पीड नहीं बढ़ेगी। जब पत्थर हम गोल घुमाते हैं या पैर एक स्पीड पे जाके कांस्टेंट घूमता है, तो फॉर एग्जांपल पत्थर अभी लीजिए, द टेंशन इन द स्ट्रिंग सप्लाइज द नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P is equal to mv square. Someone has to supply that force, तो ही वो चीज गोल घूमेगी। अगर कोई चीज, अगर वो फोर्स बंद हो जाता है तो वो चीज गोल घूमना बंद कर देगी। पत्थर गोल घुमा रहे हो, हाथ निकाल दो, टेंजेंशियल चली जाएगी। जब तक आप उसको हाथ में रखे हुए हो तो चीज गोल घूमेगी, because you are applying the tension with the help of your hand and the tension supplies the centripetal force. अभी ये पूरा और अच्छे से समझेगा because सब टॉपिक्स हो गए। इसका नेक्स्ट टॉपिक था ग्रेविटेशन। प्लैनेट्स revolve around the sun, satellites revolve around Earth because the necessary centripetal force is provided by the gravitational force. G(m)m upon r square is equal to mv square. और अच्छे से समझिएगा अभी, क्योंकि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और न्यूक्लियर भी देखेंगे। The electron revolves around the nucleus because the necessary centripetal force is provided by the electrostatic force. अभी 11th स्टैंडर्ड का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और अच्छे से समझेगा, क्योंकि उसमें दिया है कि जब एक चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज Q है, उसको v वेलोसिटी से एक मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डाला जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इट फॉलोज एन आर्क ऑफ अ सर्कल बिकॉज़ द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। हे सगळं कुठं बघितलेलं एकत्र लक्षात आलं, हे सगळं याच्याशी रिलेटेड। या धड्यामध्ये याच्या पुढचा पार्ट आहे की एखाद्या अनबॅन्ड रोडवर जेव्हा गाडी जाते, whenever the vehicle travels along an unbanked road, the curve जागी सर्क्युलर मोशन म्हणजे पहिल्यांदा डोक्यातून निकाल टाकून जास्त गोल म्हणजे संध्याकाळच्या व्याख्यानात होते सर्क्युलर मोशन अनबॅन्ड रोड टर्न येतो, आपण गोल 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 आपण असं सरळ निघून जातो। Whenever we talk about circular motion, we are not talking about something going round and round and round. We are talking about the road going straight, circular motion. सिर्फ टर्न लेने वाला जो पार्ट है, सिर्फ उसके बारे में बात है। ये दिमाग से निकाल दो पहले कि we are talking about circular motion in this. Even this is a circular motion. It's an arc of a circle. इसलिए अगर मैंने यहाँ मैग्नेटिक इमेजिन करो, यहाँ मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने एक चार्ज पार्टिकल को छोड़ा, तो वो चार्ज पार्टिकल ऐसे जाएगा, गोल घूमेगा। जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जाएगा, उसको टेंजेंशियल नहीं जाएगा, तो उस फील्ड में वो एक आर्क ऑफ अ सर्कल जाएगा। दैट इज सर्कुलर। सो डोंट मिसइंटरप्रेट इट एज असो गोल गोल गोल। So whenever a vehicle moves along a curve, along an arc of a circle, what happens? The necessary centripetal force is provided by the time.
by the plan केला sir necessary force is provided by the sine component of the normal then comes the next part. इसको सेंट्रीफ्यूगल में नहीं लिखेंगे, आगे जब एक पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो क्या होगा? बॉडी घुमाना, वही थ्रेड लेकर वही पत्थर लेकर उसको घुमाएंगे और घुमाते वो क्या करेंगे? उसका स्पीड बढ़ रहा है, अरे उसकी दोनों चीजें क्या क्या स्पीड हो रहा है? वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। यहाँ इसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्या वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। I think you understand the difference between uniform circular motion and non-uniform circular motion. Now what is going to happen? Velocity के डायरेक्शन को बदलने के लिए, वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलने के लिए कौन है? सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। जबकि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदलने के लिए टैंजेंशियल एक्सीलरेशन। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर मैं एंगुलर एक्सीलरेशन डिफाइन करूं, बड़े गौर से देखना, यहाँ बहुत सारे लोगों की गड़बड़ हो जाती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा इज इक्वल टू लिमिट एज डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा t, बराबर है? दैट इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ ओमेगा बाय। अब कैसे सोचना है ये देखो, अगेन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे। जब एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो उस वक्त उसका ओमेगा तो कांस्टेंट, और जब उसका ओमेगा कांस्टेंट है तो उसके ओमेगा का डेरिवेटिव d बाय dt ऑफ ओमेगा क्या आएगा? अल्फा 0 आएगा, और इसलिए टैंजेंशियल एक्सीलरेशन अल्फा बार क्रॉस r बार होता है, वो भी कितना आएगा? सो जब एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, टैंजेंशियल एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन दोनों 0 होते हैं, सिर्फ सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन होता है, जिसकी वैल्यू होती है r ओमेगा। जबकि एक पार्टिकल अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो नंबर 1 उसको सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन है जो उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलने का काम करता है, और अल्फा और टैंजेंशियल एक्सीलरेशन है, टैंजेंशियल एक्सीलरेशन का काम उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदलने का। और नतीजे ये दोनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर आएंगे, सेंट्रीपेटल इज टुवर्ड द सेंटर, tangential is this way, therefore the net acceleration is obtained by using what is this? Law of parallelogram of vectors, and in it the net acceleration is equal to square root of centripetal is r omega square plus tangential is r alpha दी, समझ में आई? r alpha बराबर है रूट ऑफ r ओमेगा।
plus r square into what length process परत एकदा बघा acceleration centripetal is r omega square, tangential acceleration is r into alpha, बरोबर. Tangential acceleration कहाँ से दें r into alpha because angle between alpha and r will be 90 degree, and therefore you can operate it and get down to the final result, initial result. And alpha ने देंगे इसको नाम अभी, ये angle को suppose beta नाम दे दिया. The angle at which the net is inclined is equal to what? Tan inverse of 80 upon tan inverse of 80 upon this. It is the angle to which the net acceleration is inclined to the centripetal. कोणाची प्रॉपर्टी नक्की कळले काय झालं हे सगळ्या फॉर्म्युलेचे रिव्हिजन आहे बेसिकली एक्सप्लेनेशन सांगत चालू मी एक कन्सेप्ट देऊन जातो कारण ते मॅथ्स पेपर टाकी भरपूर वेळ लागतो होऊन जातं आणि ते काय होतं एकदम प्रेशर येतं कधी सगळे एकदम काम घेतात नाही काहीच नाही नाही पण हे बघ ना सिलेबस बघ तुला केटीची रोजी असं कसं काय करता येईल एक सिलेबस बघू जेईचा एक मिनिट कोणाकडे असेल ते राहील आहे कोणाकडे आता नीट लिहून घ्या समोर जे लिहिलंय याचं बाकी मॉर्निंगला नाही घेतलं आपलं तर बायपास केल्यामध्ये फॅट परवडतं तुला पहिल्यांदा असेल हे घ्यावं लागेल मग नाही शिकवायचं हे पहिलं लावावं लागेल तुम्हाला आज मला आजचा दिवस आहे ते नसायचं मग उद्याच थांबवणार रेडिएशन घालून नाही मला असं हे बघा आज काय परिस्थिती उद्या येऊनचं बरोबर सेम होत आहे